So namaskar sabhi. Good evening, good afternoon. Everybody is welcome to this Himachal Mahabandara course where we are talking about the wholesome preparation of HCS, which is also helpful in other exams like UPSC, HCS. So economics जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हर एग्जाम में काम आनी है, प्लीज अच्छे से फॉलो करें, राइट। एंड फर्दर जी हम लोग जो इस कोर्स में चल रहे हैं यहाँ से हम पहुंच चुके हैं सर। We have covered chemistry, more than half of economics. Every week we are covering current affairs. Plus, we are done with 90% of biology, and the other components are on its way. All the six components would be covered in detail, plus Himachal GK, right? For all three stages, prelim, mains, and interview, all three stages preparation would be done. So quick recap. So topic for economics today is public sector. Public sector. Majorly हम इसमें PSCs की बात करेंगे. Public sector enterprises. वो कितने तरीके की हो सकती हैं, कैसे कैसे सेटअप हो सकता है, उनमें महारत्ना, मिनी रत्ना और ये सारी चीजें क्या हैं जी. So all that stuff we are going to talk today. So let's get into it very quickly. So PSCs या public sector units, PSUs होते क्या है जी? These might be commercially oriented and some might not be. Some might be. For example, ONGC earns profit. Yes. Railways is not actually for earning profit. Or education departments are not for earning profits, right? So these are companies owned generally totally or some percentage, majority percentage by the government. That might be central or state. राइट सर, तो कम से कम मेजॉरिटी शेयर्स मोर देन 50% या 51% कह सकते हैं. जब 51% कंपनी के शेयर सरकार के पास होंगे तो हम उसे बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी. एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सर ये ध्यान से पढ़ना जरा. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा हो सकता है. लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैच्यूट से बनी मतलब लॉ से बनी. एग्जैक्टली स्टैच्यूट क्या होता है पॉलिटी में करेंगे. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर एग्जांपल ONGC, या फिर कंपनीज हो सकती हैं. तो तीन तरीके की PSCs होती हैं जी हिंदुस्तान में. वन इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, वन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एंड द थर्ड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. फॉर एग्जाम्पल BHEL या भेल या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राइट. सो टाइप्स ऑफ PSCs हमने बात कर ली. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की क्या kind of characteristics हैं. These are not formed by or with consent of legislative authority. Legislature नहीं, ज्यादातर इन्हें एग्जीक्यूटिव एक्शन से सर, एग्जीक्यूटिव एक्शन से इन्हें फॉर्म करा जाता है जी, राइट. एंड आर चार्ज्ड विद ड्यूटी ऑफ कैरिंग आउट स्पेशली डिफाइंड फंक्शंस. रेलवे की बात करो, क्या फंक्शन है उनका? ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट करता है रेलवे. सो इधर एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं सर. पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक, these are railways. These are kind of departmental undertakings, public sector enterprises in character of departmental undertakings. और इनको बजट से जी, एनुअल बजट से इन्हें पैसा मिलता है. दे आर फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट एंड ऑडिट, बजटरी ऑडिट एक्सेट्रा सारे कंट्रोल सरकार अपने पास रखती है. एंड जनरली पब्लिक यूटिलिटीज लाइक रेलवे और पोस्टल सर्विसेज are provided at fair prices in larger public interest, right? So then further the statutory corporation, ये by law by statute बनाई गई है. They are normally engaged in economic or manufacturing activities like ONGC, IOC, Indian Oil Corporation, ONGC, Oil and Natural Gas Company, right? And shares of such corporations are in the name of the government, at least the majority. And thus, these are owned and rule objective functions and duty defined by a specific parliamentary act. But important बात ध्यान देने वाली सर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बजट से सपोर्ट नहीं मिलेगी. is not part of budget, right? They can retain their revenues and also spend as per the rules laid by the statute or the law, right? Then sometimes control boards are made. These are to manage government project. भी एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जैसे भाखड़ा नंगल रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड.
सो ये भी पीएससी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, जस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, राइट सर. देन गवर्नमेंट कंपनी लाइक बीएचईएल आई सेड, गवर्नमेंट कंपनी है तो मोर देन 50% सरकार का होगा जी, of the share capital or paid up capital, right? And rarely they are also set up as cooperative societies like Krishi Bharat Cooperative Limited, Fertilizer Cooperative Limited, and they are registered under what? Under the Multi-State Cooperative Societies Act, and over 65% of the capital is held by the central government generally, sir. राइट. सो हमने सारे तरीके की पीएसयूज की बात कर ली, और अब ये पीएसयूज के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? टू बिल्ड अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, जो हमने आजादी के बाद सोचा आफ्टर 1947, 91 तक ये हमारे बैकबोन रहे जी इकोनॉमी के पीएसयूज. देन हमने 91 में जब प्राइवेटाइजेशन कर दी तो इनका रोल कम हो गया, अब और कम करने की कर रहे हैं, हम आगे जाके बात करते हैं, राइट. रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्राइवेट इकोनॉमिक पावर, एस्टैब्लिश साउंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. सारे कैसे वाले हैं सर कि पब्लिक सेक्टर में हम लोगों को यूनिट्स लगा के क्यों दे रहे हैं? वाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, सर, राइट. इंपॉर्टेंस क्या है जी? द रिकॉर्ड ऑफ पीएसयूज इन सप्लाइंग मेनी गुड्स लाइक कोल इंडिया लिमिटेड, राइट, ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, पावर लाइक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इरिगेशन एंड सो ऑन इज कमेंडेबल. अभी तक बहुत अच्छा चला था रोल, अब इन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, स्ट्रेटेजिक सेल, ये क्या होती है टर्म्स अभी आगे जाके बात करेंगे. व्हाई वी आर डूइंग दैट अगेन आगे बात करेंगे, डोंट वरी, राइट. द पीएसयूज आर अ मॉडल एम्प्लॉयर. बहुत सारे लोग ओएनजीसी में बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, 2-2 लाख रुपए महीना, 4-4 लाख रुपए महीना पाते हैं, राइट. एंड एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन एमपी, राजस्थान की जो बैकवर्ड एरियाज भी हैं उनमें भी इंडस्ट्री लगाएंगे. प्राइवेट आदमी तो लगाएगा नहीं, वो तो चाहेगा मैं शिमले में सारी दुकानें खोलूं, राइट. तो रामपुर बुशहर में कौन खोलेगा जी? सिटी शिमले में सारे खोलेंगे तो फैक्ट्रीज बैकवर्ड इलाके में भी इम्बैलेंस्ड ग्रोथ ना हो, इसलिए पीएसयूज आर इंपॉर्टेंट. एंड नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ को प्रोवाइड करें कि भाई सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना पीएसयू ने, वेलफेयर भी देखना है, राइट. सो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर अब 3 ही रह गए हैं जी, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल स्पेसिफाइड इन द एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज. जनरली 3 ही रिजर्व्ड है. डिफेंस, अब 3 है जी, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज. अब रेलवेज भी प्राइवेटाइज करने की बात शुरू हो गई है जी, बट अभी तक ऑपरेशंस, एक्टिविटीज, 1-2 ट्रेन अलाउ करी हैं, रेलवे को सेल पे नहीं लगाया, राइट. सो गोइंग फर्दर, व्हाट आर द रिफॉर्म्स? सिंस 1991 एज आई सेड वी आर इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट इकोनॉमिक्स. पहले हमने नियो लिबरलिज्म की बात करी थी, प्लीज वो लेक्चर देख लेना. सो नियो लिबरलिज्म, सो हम क्या कर रहे हैं, डी रिजर्वेशन की पहले 18 थी रिजर्व पब्लिक सेक्टर के लिए, अब सिर्फ 3 है जो सरकार ही चलाएगी, राइट. 18-3, अब मेजरली कह लो तो 2.5 रह गई है, बिकॉज रेलवे में भी लगभग हमने ऑपरेशन अलाउ कर दिए पब्लिक सेक्टर के, राइट. सो देन they are withdrawing the public sectors from commercial and other areas like hotels, bakeries, etc. So होटल खोल के सरकार ने क्या करना है, पहले चलते थे ना जैसे चंडीगढ़ में सीटीयू के होटल्स होते हैं, सॉरी सीटीयू की तो बसें होती हैं, सिटको के होटल्स होते हैं. सो इन लोगों को हम लोग बेच रहे हैं बिकॉज हम लोग चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी आए. सो नाउ व्हाट आर वी डूइंग? We are going for strategic sale. Strategic sale where a PSE is sold over to a strategic partner who buys majority equity. So अगर आपने majority equity ले ली सर, एक तरह से अगर जनरल पैरालाइंस में बोलें तो 51%, मोर देन 50%, तो डिसीजन मेकिंग कैसे होती है कंपनी में? शेयर होल्डर्स बैठते हैं और वोट करते हैं सर. सो जब आपके 50% से ज्यादा शेयर होल्डर आपके हैं, मोर देन 50%, सो अब आप ही डिसीजन लेंगे ना सर. सो अगर स्ट्रेटेजिक सेल हो रही है तो प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट देखेगा जी, जो शेयर लेगा वही मैनेजमेंट देखेगा. एंड प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट को माना जाता है सरकार से ज्यादा एफिशिएंट सर, राइट. सो स्ट्रेटेजिक सेल मतलब मेजॉरिटी इक्विटी बेच रहे हैं, राइट. एक तो होगी जनरल बात जो मैंने कहा जी, 51% पूरी मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के पास हो जाएगी, मोर देन 50%. एक लॉ से रिलेटेड बात है, अगर 26% भी आप बेच देते हो, सो इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए आपको 75% मेजॉरिटी चाहिए होती है. इंपॉर्टेंट डिसीजन कंपनी लिए क्या होता है, सपोज हम टी शर्ट्स बनाते थे, अब हमने बंद करके शर्ट्स बनानी है,
या फिर हम शिमला में काम करते थे, अब हमने शिफ्ट करके शिमला से बाहर, हिमाचल से ही बाहर जाना है। सो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए 75% से ज्यादा आपको मेजोरिटी चाहिए होती है। सो अगर दूसरी तरफ 26% भी कोई और ले ले तो आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं ले सकते सर। सो दोनों का मतलब ही एसेंशियली स्ट्रेटेजिक सेल होता है, बट जनरल स्टडीज के लिए स्ट्रेटेजिक सेल जो आजकल डिफाइंड है दैट इज 50% एंड मोर, अबव 50%, राइट? सो प्लीज बी क्लियर अबाउट दैट। एंड इंक्रीजिंगली दे आर बीइंग सब्जेक्ट टू मार्केट डिसिप्लिन। जो पीएसयूज एग्जिस्टिंग भी हैं उन्हें स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया जाता है और फिर प्राइवेट लोग थोड़े बहुत शेयर ले लेते हैं। इस वजह से इन्हें मार्केट डिसिप्लिन के हिसाब से चलना पड़ता है। अब सरकारी मोनोपोली का जमाना गया जी, राइट? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू लिबरल इकोनॉमी, राइट? अ प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी। एंड ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या हुआ? लिटरल एफडीआई नॉर्म्स एंड इंपोर्ट कैपिटल गुड्स कंपेल द पीएसयू टू परफॉर्म। क्योंकि हमने एफडीआई आ रही है और इंपोर्ट्स आ रहे हैं तो पीएसयूज को करना ही करना पड़ा, या तो करो या फिर मरो। जो मर गए बेचारे एचएमटी वाले, रद्द हो गए एक तरह से। वेरी डिफिकल्ट नाउ टू रन दैट फैक्ट्री, राइट? वी आर ट्राइंग टू सेल इट और वी हैव सोल्ड इट इन फैक्ट, राइट? देन MOUG, Memorandum of Understanding MOU system is being improved with greater weightage being given to criterion of financial performance. So financial performance पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो स्टेटसेस दिए जा रहे हैं, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, इनका मतलब क्या है जी? 1997 में नवरत्ना आया, मिनी रत्ना बाद में आया, महारत्ना 2011 से आया। ये तीनों स्टेटसेस है क्या? एक्चुअली ऑटोनॉमी दी जा रही है जी। पीएसयूज को ऑटोनॉमी दी जा रही है कि आप सरकारी मिनिस्टरों के चक्कर में ना पड़ो, अपना खुद का मैनेजर रखो और खुद के डिसीजंस अपने आप लो, बट हमें प्रॉफिट कमा के दिखाओ। नहीं कमाओगे तो हम बेच डालेंगे, राइट? सो इसकी वजह से, रिफॉर्म्स की वजह से, रिफॉर्म्स हैव पेड ऑफ एंड परफॉर्मेंसेस हैव सर इम्प्रूव्ड, राइट? सो गोइंग फर्दर, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। सो डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुई जी? डिसइन्वेस्टमेंट, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। सपोज मेरे पास सरकार था मैं, और सरकार के पास 100 रुपए के शेयर थे, पूरे 100% शेयर थे, 100% शेयर ऑफ अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हो गई है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि मैंने लेट्स से 100% में से 30% किसी और को बेच दिए, तो 70 गवर्नमेंट के पास, 30 किसी और प्राइवेट के पास। सो दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट कि 30% शेयरों के मैंने पैसे सरकार को दे दिए और सरकार ने इसे वेलफेयर में यूज कर लिया, बट कंपनी तो फिर भी गवर्नमेंट रही बिकॉज 70 गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेटाइजेशन ऑन दी अदर हैंड मीन्स व्हाट? कि 100 के शेयर थे हमारे पास, हमने मोर देन 50 बेच दिए, मोर देन 50। दैट मीन्स कि अब प्राइवेट सेक्टर के पास 50 मोर देन 50% है और मैनेजमेंट ही प्राइवेट सेक्टर करेगा। दैट इज प्राइवेटाइजेशन, राइट? सो डिफरेंस क्लियर जी, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। इससे ज्यादा कोई खास लोड नहीं है हमारे पास। स्ट्रेटेजिक सेल की हम बात कर चुके हैं, राइट? सो एडवांटेजेस क्या है जी इन चीजों की, प्राइवेटाइजेशन की खासकर? इट गेट्स इन्वेस्टमेंट टू द गवर्नमेंट दैट इट कैन यूज फॉर वेलफेयर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद मैनेजमेंट कंट्रोल विल इन्वेस्ट फॉर फर्दर डिवर्सिफिकेशन। प्राइवेट आदमी एफिशिएंट होगा जी, एंड वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड फंक्शनिंग कंपनी की जब अच्छी होगी, वर्कर्स को भी अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो सबका फायदा होगा जी अगर प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी लेके आता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, डाइवर्स फील्ड में जाए और वर्कर्स को भी फिर सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज करे, राइट? एडवांटेजेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा जी? कल्ला डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइज नहीं करा, लगभग सेम बातें। रेजेस फाइनेंस फॉर द गवर्नमेंट, मेक्स एडिशनल फाइनेंस अवेलेबल फॉर सोशल सेक्टर प्रायोरिटीज, कि सरकार एजुकेशन, हेल्थ पे ध्यान दे सके, उन्हें पैसे मिल जाएं, राइट? एंड मार्केट डिसिप्लिन भी लेके आएंगे, कुछ शेयर होल्डर सरकार के सरकारी कंपनियों में प्राइवेट हो जाएंगे सर, राइट? सो एंड वन मोर थिंग, सरकारी अधिकारी तो अपने आप को आज भी सरकारी जवाई समझता है, वो काम करना ही नहीं चाहता। जब उसे प्राइवेट नौकरी मिलेगी, उसे पता है भी निकाल देंगे, तो वो भी एफिशिएंटली काम करेगा, राइट? ऑल दीज पॉइंट्स में यही बातें लिखी हैं। सो गोइंग फर्दर, क्रिटिसिज्म क्या है? जो बहुत लोग कहते हैं बेच दिया देश। सो कुछ तो क्रिटिसिज्म भी है सर। माना जाता है कि ये फैमिली का सिल्वर है, जैसे हम लोग लैंड से या पुरानिक ज्वेलरी से प्यार करते हैं, तो ये पीएसयूज हमारी गवर्नमेंट की पुरानिक ज्वेलरी है, इसे नहीं बेचना चाहिए। फिलोसॉफिकल पॉइंट सर। देन पीएससीज चेक द प्राइवेट सेक्टर इन वाइडर मार्केट,
कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेरिंग ना करने लग जाए, सब कुछ उन्हें दे दिया तो वो प्रॉफिटेरिंग ना करने लग जाए कि हम नहीं बेचते सस्ता, राइट। ये भी फियर है, मार्केट डिसिप्लिन, डिमांड एंड सप्लाई करेंगे, ज्यादा ऊंचा नीवा बेचोगे तो लोग लेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात, राइट। एंड पीएसईज कंट्रीब्यूट बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है लाइक ओएनजीसी, ये हर साल सरकार को करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा के देती है। तो एक तरह से ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है सर, आप इसे काट रहे हैं, मार रहे हैं। सो दिस इज अनदर क्रिटिसिज्म सर। देन the exercise is essentially meant to garner resources for filling the revenue deficit. So basically आप क्या कर सकते हो, बोल रहे हैं कि ओएनजीसी जैसी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है इनको ना बेचो, ये आपको प्रॉफिट वैसे ही ला देंगे रिसोर्सेज ओवर द इयर्स, राइट। देन गोइंग फर्दर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैसे करी जाती है जी? डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, अब आपने शेयर बेचना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कोई कोचिंग लेनी है, मैंने कोचिंग बेचनी है, आपने खरीदनी है सर। तो अब मेरी कोचिंग का अगर एसेट्स देखो, चेयर्स, टेबल्स एंड प्रोबेबली लैपटॉप एक्सेट्रा, कुछ कुल मिला के 5 लाख रुपए का होगा ज्यादा से ज्यादा। बट मेरा कैश फ्लो थोड़ी 5 लाख रुपए का है, टोटल कैश फ्लो तो ज्यादा है ना। जस्ट टेक अ हाइपोथेटिकल नंबर, लेट्स से कि मेरा कैश फ्लो 2 लाख रुपए महीने का है जी, या 4 लाख रुपए महीने का है जी, जस्ट एन एग्जाम्पल, 4 लाख अ मंथ है जी। मेरे एसेट्स मेरे पास सिर्फ 5 लाख के हैं, कुर्सी वुर्सी ये वो, मैं 4 लाख रुपीज महीना यहाँ पे कैश फ्लो है, इनकम है। सो अगर ऐसा है तो क्या मैं आपको सारी कोचिंग 5 लाख की बेच दूंगा? नेवर 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 सर, मैं तो 2 महीने में से ज्यादा कमा लूंगा। सो हाउ वुड माई वैल्यू बी काउंटेड? इट वुड बी काउंटेड बाय द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। दैट इज कि फ्यूचर कैश फ्लो को बिजनेस में वैल्यू करे जाएगा, वैल्यू ऑफ अ बिजनेस बेस्ड ऑन स्ट्रीम ऑफ इट्स फ्यूचर प्रॉफिट और कैश फ्लो। कि 4 लाख रुपए महीना अभी आ रहा है, आप खरीदोगे 10 साल में, हर साल में 10% बढ़त होगी, तो 4,40,000 रुपए का मान के चलो हर अगले साल से शुरू हो जाएगा। तो 10 साल की वैल्यू तो आप दोगे मुझे 50 लाख रुपए की, ले लो सर, 5 लाख रुपए की थोड़ी दूंगा, राइट। बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर डिसइन्वेस्टमेंट करनी होती है तो ये चीज काउंट होती है। नेट एसेट वैल्यूएशन कहाँ काउंट होती है? जहां पे वाइंडिंग अप हो रही हो, या बंद हो रही हो कंपनी, क्लोजिंग डाउन हो रही हो, या फिर दिवालिया बोल गया उसकी नीलामी हो रही हो सर, बोली लग रही हो, ऑक्शन हो रही हो कि कंपनी तो बंद है अब इसके ऑक्शन करो, कैश फ्लो तो है ही नहीं इसमें। सो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, राइट। सो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन क्या है? So reforming the PSC since 1991, we have dealt with this. Divest क्यों करना है? To raise money and other advantages. Strategic sale for loss making companies. Loss making companies को पूरा बेच के प्राइवेटाइज कर दो, लगभग 50% से ज्यादा बेच दो। नीति आयोग रिकमेंडेड कि 34 सिक यूनिट्स को बेच दो जी। इनको सिक यूनिट्स क्यों टैक्स पेयर का पैसा खराब करी जाना लॉस में। एंड लिस्ट ऑल अनलिस्टेड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इससे क्या होगा? मार्केट डिसिप्लिन आएगा जी। एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये क्या कहता है जी? ओएनजीसी जैसे कैश रिच है, ये कैश कल्ला रख के क्या करेगा? इसी को किसी नॉन परफॉर्मिंग या और किसी सरकारी कंपनी के शेयर ले दो। फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी के पास 1,000 करोड़ रुपए कैश पड़ा है। अब ये क्या करेगा? कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर 500 करोड़ के खरीद लेगा सरकार से। तो सरकार को 500 करोड़ कैश चला गया, इनके पास 500 करोड़ के शेयर आ गए, राइट। सो अगेन दिस इज क्रॉस बाइंग और क्रॉस होल्डिंग और बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स बेसिकली वही कंपनी कर सकती है जी, क्रॉस होल्डिंग समझाया था मैंने अभी। बाय बैक मेजरली मीन्स क्या? अभी आगे जाके आएगा भी ये डायग्राम कि पहले इन्होंने पब्लिक को शेयर इशू करे सर, कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू करे पब्लिक को, और जब पब्लिक से वापस खरीद लिए तो दैट इज कॉल्ड बायबैक, राइट। सो एंड क्लोज डाउन पीएसयूज व्हिच कैन नॉट बी रिवाइव्ड और सोल्ड। तो फालतू की ऐसी खड़ी हैं, फालतू में पुराने जमाने की, कोई काम नहीं चल रहा, ट्रांजिस्टर बनता था जी यहाँ पे, बंद करो उसे, कोई फायदा नहीं, राइट। स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक क्लासिफिकेशन, जो मोदी साहब ने कहा है कि स्ट्रेटेजिक एरियाज में सरकार रहेगी, बट नॉन स्ट्रेटेजिक एरिया को प्राइवेटाइज कर दो सर। He says government has no business to stay in business। वही बात होगी ना जो हमने न्यू लिबरलिज्म में पढ़ी थी,
अगर नहीं पढ़ी तो प्लीज पीछे जाके वीडियो देख लेना सर प्लीज, राइट। सो गवर्नमेंट हैज क्लासिफाइड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इनटू स्ट्रेटेजिक, जो ज्यादा जरूरी है, नॉन स्ट्रेटेजिक एरियाज फॉर पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. So it was decided that strategic public sector enterprises would be those in areas of, कहाँ strategic है जी, arms and ammunition या defense, then atomic energy, railways and बाकी सारियों को नॉन स्ट्रेटेजिक माना जाएगा. और मोदी साहब ने अब कह दिया है कि धीरे धीरे बेच डालेंगे. बायबैक ऑफ शेयर्स में समझा दिया था, यही वाला डायग्राम आ गया. देखो कंपनी ने पहले इशू करे पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को, और अगर बायबैक करना होगा तो बायबैक कर दिया. एंड रीजंस एंड एडवांटेजेस, एग्जिट पॉइंट मिल जाता है इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को बायबैक से. कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन कंपनी हो जाती है कि अगर आपके 100% की जगह 40% आपने जनता को बांटे हुए थे, तो अगर आप 100 रुपए कमाओगे तो 40 रुपए तो जनता को देने पड़ेंगे. तो अगर कंपनी बायबैक कर लेगी, जनता को पैसे का फायदा, कंपनी आगे जो प्रॉफिट कमाएगी उसको ज्यादा मिलेगा, राइट. सो गोइंग फर्दर जी, क्रॉस होल्डिंग्स भी मैं समझा चुका हूं कि लेट्स से जी ओएनजीसी के पास कैश पड़ा है, तो ओएनजीसी के पास भी कैश पड़ा है, कोल इंडिया लिमिटेड के पास भी कैश पड़ा है. इन दोनों कंपनियों में लेट्स से भी 80% सरकार के पास है. सो अब कोल इंडिया क्या करता है, अपना कैश यूज करके ओएनजीसी के 500 करोड़ के शेयर खरीद लेता है. ओएनजीसी क्या करता है, अपना कैश यूज करके 500 करोड़ के कोल इंडिया के लिमिटेड के शेयर खरीद लेता है. ये 1000 करोड़ किसके पास जाएंगे, जो शेयर का मालिक होगा सरकार. सरकार को मिल गए 1000 करोड़ और ओएनजीसी को मिल गए 500 करोड़ के शेयर, सीएएल को, कोल इंडिया लिमिटेड को भी मिल गए 500 करोड़ के शेयर. दिस इज कॉल्ड क्रॉस होल्डिंग. इससे बेनिफिट क्या होता है जी, प्रमोटर से डायरेक्ट आप सरकार से शेयर ले रहे हो और आपको कंपनी को भी फायदा होगा और सरकार को भी पैसे मिल जाएंगे, राइट. देन ईटीएफ, ये चीज थोड़ी समझने वाली है, दुनिया को पता नहीं, समझानी नहीं आती या समझ नहीं आती, पता नहीं यार. ये ईटीएफ ना एक बास्केट मान के चलोगी, बड़ी सिंपल सी बात है. थोड़ी बास्केट सिंपल नहीं है, गंदी बन गई है, हमसे दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं. सो एक जी बास्केट है, ये बास्केट है जी. तो इसमें 1 किलो सेब है, 1 किलो अनार है, 1 किलो लेट्स से आलू बुखारा है, और 1 किलो क्या है जी, लीची है. तो इसमें 4 तरीके के किलो किलो फल है, सेब अनार लीची. ये 500 रुपए की बास्केट है. अब वही सेम बास्केट आप बोलते भैया मेरे को छोटी दे दो, मेरे को इतनी महंगी नहीं चाहिए. वही सेम बास्केट में सर वो कहता है चलो ठीक है, फिर आप 2 फल ले लो, ये सेब 1 किलो सेब दे देते हैं जी, और 1 किलो आपको लीची दे देते हैं, बाकी सब निकाल लेते हैं. सो सेम बास्केट का प्राइस अब हो गया जी 250 रुपए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. सो बास्केट का प्राइस कहाँ से बन रहा है, जो इसके अंदर कमोडिटी है, अंडरलाइंग कमोडिटी. ऐसे ही ETF इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. फलों की जगह सिक्योरिटीज होती हैं सर, सिक्योरिटीज से उसकी वैल्यू बनती है. लेट्स से एक 10 यूनिट ऑफ ओएनजीसी का शेयर थे और 10 यूनिट ऑफ सीआईएल के शेयर थे, एक लॉस मेकिंग एचएमटी के भी डाल दिए, क्योंकि कल एचएमटी का तो कोई लेगा नहीं, तो ओएनजीसी सीआईएल के साथ इकट्ठे कर दिए, और 10 बेल के भी डाल दिए. अब ये सारे कुल मिला के हमने इसकी एक वैल्यू निकाल ली, तो इसे कहते हैं ईटीएफ. एक बास्केट बना दी जो सिक्योरिटीज मार्केट में सिक्योरिटी की तरह बिकेगी, स्टॉक मार्केट में स्टॉक की तरह बिकेगी, राइट. सो बास्केट फलों की वैल्यू कहां से बन रही थी, जो बास्केट की वैल्यू नहीं, बट जो उसके अंदर फल थे. वैसे ही उस बास्केट इकट्ठी करी के शेयरों की वैल्यू नहीं है सर, जो उसके अंदर शेयर है उसकी वैल्यू, राइट. सो दिस इज कॉल्ड ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. अब किसी बेवकूफ ने टेस्ट सीरीज में ये भी डाला हुआ था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट. अरे भाई नाम में ही है सब, प्लीज ट्रेड तो होंगे ना एक्सचेंज पे, राइट. द फंड इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, सी हियर इट इज मेंशन्ड, लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज ट्रेडेड, नाम में ही है सर, राइट. सो एडवांटेज क्या है जी, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल में देखा कि एचएमटी के शेयर भी हम बेच पा रहे हैं चाहे वो लॉस मेकिंग था, क्योंकि लोग ओएनजीसी के लालच में ले लेंगे, राइट. सो इंडिया ने 2017 में, जस्ट अ मिनट, पिछली स्लाइड पे एक चीज रहेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में ये ईटीएफ प्राइवेट फंड मैनेजर्स को दिया था 10 पीएससीज का. दूसरी बार 2017 में भारत 22 नॉट स्टेज सॉरी, भारत 22 के नाम से
19 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट बैंक्स एंड सम होल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आर्म सूटी, राइट। इन सबको 22 चीजों को कंबाइन करके एक ही बास्केट है, वो फल की बास्केट में 22 फल हैं जी। सो 22 फलों को इकट्ठा बेचा। भारत है, भारत 22 है, 22 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 10 हैं। इन दैट सेंस भारत 22 इज मोर डाइवर्सिफाइड एंड हैज अ सिंगल कंपनी कैप ऑफ 15% वेटेज, कि अगर आपने 10 कंपनियां डालनी है तो किसी भी कंपनी की 15% से ज्यादा वेटेज नहीं हो सकती, राइट। सो अगेन दिस इज एन ETF सर। सो मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ मिनॉरिटी स्टेक इन CPSCs, मिनॉरिटी, मेजॉरिटी नहीं। सो IPO से बेच सकते हैं सर। IPO क्या होता है? लिस्टिंग निकाली कि शेयर बेच रहे हैं हम, लोगों को दे दिया। FPO मतलब एक बार IPO निकाल चुकी थी कंपनी, दोबारा IPO निकालेगी तो उसे FPO बोलेंगे। देन ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय प्रमोटर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डायरेक्टली बेचना, ऑफर फॉर सेल सर। देन स्ट्रेटेजिक सेल, सेल ऑफ, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अप टू नहीं, अब मोर देन 50% की सरकार प्राइवेटाइज ही कर देगी। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट सर, ये चीज देखने वाली है, प्लीज इसे ध्यान देना। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ओनली इंस्टीट्यूशंस कैन पार्टिसिपेट इन द ऑफरिंग, कि अब एक एक बंदे को 1000 5000 के शेयर क्यों बेचने। एक अमीर आदमी पकड़ा कि 500 पर शेयर बेच रहे थे, भाई साहब आप 10 करोड़ के ले लो, इंस्टीट्यूशन था ये अमीर सा, आप 10 करोड़ के ले लो, आपको 400 पर शेयर दे देंगे। सो इंस्टीट्यूट में ही प्लेस कर दिया, दैट इज इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। देन ETF बना के बेच दिए, EFT नहीं ETF होना चाहिए, प्लीज इसे करेक्ट कर लेना, राइट। सो ETF बना के बेच दिया, क्रॉस होल्डिंग, इस चीज की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड सर यूज कहाँ पे होंगे? जो लेट्स से हमने डिसइन्वेस्ट करा, ONGC बेचा 10%, उसके 10,000 करोड़ रुपए मिले हमें। सो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में इकट्ठे कर दिए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 2005। नवंबर 2005 याद रखना, हिमाचल आपसे डेट्स पूछ लेता है महीने के साथ, एंड आर यूज्ड फॉर अप्रूव्ड पर्पस एज डिसाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो सरकार अप्रूव करती है पर्पस, उसके लिए यूज होता है। अभी कहाँ क्रेडिट हो रहा है? डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड टू नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड विच इज अ पब्लिक अकाउंट। प्लीज ये भी ध्यान रखना, ये पॉलिटी में समझ आएगा एग्जैक्टली पब्लिक अकाउंट क्या होता है। अभी इसे रट्टा मारो जिंदाबाद कि ये NIF पब्लिक अकाउंट के हिसाब से स्टोर्ड है हिंदुस्तान की सरकार के पास, राइट। सो गोइंग फर्दर, कौन से पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है जी? ये शेयर्स भी खरीदे जा सकते हैं, सब्सक्राइब टू शेयर्स बाय CPSCs ऑन राइट्स बेसिस, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसका बहुत तगड़ा रोला था, पैसे कहां से लाएं, तो यहां से ले आएंगे जी। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को रिकैपिटलाइज, इक्विटी इन्फ्यूजन, ये भारतीय नभिक्या विद्युत निगम लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूरेनियम कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेलवेज के लिए एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स भी अब इसमें ऐड कर दिए गए, राइट। So going on to statuses of companies, नवरत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनी, महारत्ना कंपनी, ये क्या चीज है? बेसिकली ये तीनों के तीनों स्टेटस ना ऑटोनॉमी के लिए दिए गए हैं, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने हिसाब से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, पॉपुलिज्म से दूर होके अपने हिसाब से इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें कि घाटा ना खाएं, राइट। So economic reforms subject PSCs to market competition. Globalization makes the competition more intense. To perform in such conditions, PSCs need a level playing field with private firms. Hence the Navratna package to give them autonomies to PSCs. In Navratna नमकीन नहीं है सर, और कहीं ठंड में आपका मूड खराब हो जाए, right? So Navratna, Mini Ratna, Maharatna, all are given to actually selected PSUs on the basis of their performance. जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो बच्चा अच्छा करता है परफॉर्म, उसे घर वाले कुछ लिबर्टी देते हैं ना, कि जा बेटा घूमा, जा बेटा बाइक ले ले। सो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी सरकारी, उसे स्टेटस दिया जाएगा, राइट। सो नवरत्नाज कौन से हैं इतना याद करने की लोड़ नहीं है, महारत्नाज हम याद कर लेंगे, बाकी अगर आपने नवरत्ना याद करने हैं, लिस्ट दी गई है जी, राइट। एंड क्वांटिटेटिव सिस्टम कन्फर्ड द स्टेटस, क्या सिस्टम है, किस हिसाब से दिया जाता है? उसमें नेट प्रॉफिट काउंट किया जाता है जी, टोटल मैन पावर काउंट की जाती है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस,
डेप्रिसिएशन हम क्यों माइनस करते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में इकोनॉमी बेसिक्स में समझाया था, अगर समझ आ गया तो प्लीज मुझे बताना। राइट, टू गेन अ नवरत्ना स्टेटस क्या चाहिए, पीएससी को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को 60 आउट ऑफ दी ओवर दी 100 मार्क्स एलोकेटेड टू दीज आर, 60 लेने पड़ेंगे जी। राइट, फर्दर these navratnas are subject to certain guidelines but now have freedom। कौन सी फ्रीडम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी मर्जी से कर लो, जॉइंट वेंचर्स को डिसाइड कर लो, सब्सिडीज चाहे अपने देश में खोलनी चाहे बाहर खोलनी खुद खोल लो, तो काफी सारा इन्हें फ्रीडम दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़ रुपए और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ दे कैन स्पेंड ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट आस्किंग फॉर एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। राइट, सो सरकारी इंटरफेरेंस कम कर दीजिए। राइट, सो मिनी रत्ना अगेन स्टेटस ऑटोनॉमी के लिए ये जॉइंट वेंचर्स में जा सकती हैं, सब्सिडरी कंपनीज बना सकती हैं, ओवरसीज ऑफिसेज बना सकती हैं, बट इनमें भी अगेन कंडीशंस है। इनको दो में बांटा गया, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ये प्रॉफिट के हिसाब से और परफॉर्मेंस के हिसाब से, नो नीड टू गो इनटू डिटेल्स। राइट, देन मिनी रत्ना कंपनीज अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड कि रट्टा मारो, बट चलो अगर बहुत तेज है रट्टा तो मार लो भाई। महारत्नाज, अब इसको रट्टा मार लेना सर, ये काम आएगी चीज। महारत्नाज, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड महारत्नाज इन February 2010 with objective to delegate enhanced powers to boards of identified large size नवरत्न। ये भी सवाल आ चुका है कि जो पहले नवरत्ना थी क्या उन्हें बनाया गया था महारत्ना? हाँ जी सर, अब नहीं बनाई जा रही है, बट सबसे पहले महारत्ना स्टेटस ही उन्हें दिया था जो नवरत्ना थी। और इनके लिए क्या होना था, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स बोथ में इनके ऑपरेशन। राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हैविंग नवरत्ना स्टेटस, लिस्टेड ऑन द इंडियन, ये ध्यान रखना सर, ये ध्यान रखने वाली चीज है महारत्ना के लिए, लिस्टेड ऑन द इंडियन एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल अंडर सेबी रेगुलेशंस, एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़ पिछले 3 साल में, एनुअल एन एवरेज एनुअल नेटवर्थ कितनी होती है, 15,000 करोड़, प्लीज ध्यान रखना इसे। राइट, एंड प्रॉफिट, लॉस मेकिंग नहीं, प्रॉफिट मोर देन 5,000 करोड़। राइट, एंड ग्लोबल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन सर, प्लीज ध्यान रखना इन चीजों को, एलिजिबिलिटी को। और डेलीगेशन ऑफ पावर्स क्या करी जाती है, ऑटोनॉमी क्या दी जाती है, नवरत्ना पावर्स तो है ही है, इन एडिशन टू दैट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट भी खुद कर सकते हैं, और बहुत सारी वेंचर्स एंड सब्सिडरीज बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड 5,000 करोड़ तक एक सब्जेक्ट में, एक प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं बिना सरकारी अप्रूवल के। नवरत्ना को 1,000 अलाउड था, इन्हें 5,000 अलाउड है। राइट, और ये वाली याद कर लेना जी, ये 7 से बढ़ गई है क्या, करंट अफेयर्स में देखना प्लीज। सो ये याद कर लेना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी एंड सेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुझे तो ये ऐसे याद था, भेल, सेल, गेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड एंड आईओसी। 1 2 3 4 5 6, 7वीं कौन सी रहेगी सर, गेल हो गया हमारा, 7वीं एनटीपीसी रहेगी सर। सो भेल, सेल, गेल तो याद ही रहेगा अब। सो लेट्स गो अहेड। सो ये सारी कंपनी उसके लिस्ट है, इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो सर। एंड एक एज ग्रुप, एड हॉक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया गया था, उन्होंने रिपोर्ट दी कि एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए सेटअप किया गया था। हेड कौन था इनका, अर्जुन सेन गुप्ता। इन्होंने बोला था ग्रेटर ऑटोनॉमी दो सर पीएसयूज को, एंड ट्रूली इंडिपेंडेंट बोर्ड्स बनाओ कि वो बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अपने आप डिसीजन ले सकें, एंड the ministry concerned should not review the PSU for more than twice a year। बार बार नाचाकाची नहीं करनी जी, and ministry should not interfere with functioning at all because they are not experts at that। right, autonomy की बात कर रहे हैं, और हेड कौन है इनका, अर्जुन सेन गुप्ता। राइट, सो गोइंग फर्दर जी, गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, 51% स्टेक अगर रखा भी है तो आपको ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ऑल दोज ऑटोनॉमी वाली बात, एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ नवरत्ना, मिनी रत्ना एंड महारत्ना को इंक्रीज कर देना चाहिए।
राइट. सो नीति आयोग क्या कहते हैं जी डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में? नीति आयोग सेज in 2016-17 budget, finance minister speech, in his speech said that नीति आयोग would identify sectors unit for strategic sales. हमने बात करी थी 34 सिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करा है जी. कौन करता है स्ट्रेटेजिक सेल के लिए? प्लीज ध्यान रखना, इसे नीति आयोग करेगा जी. राइट. एंड फर्दर दीपम, दीपम ये बहुत फेमस है हमारे भाई साहब का डिपार्टमेंट. द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वाज रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, या फिर दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. It is aimed at proper management of centers investments in equity including disinvestment. So एक पूरा डिपार्टमेंट है जी दीपम जो डिसइन्वेस्टमेंट को देखता है. And it is mandated to advise the government in matters of financial restructuring of central sector enterprises and for attracting investment through capital markets. Right, sir? So जो भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है राय नीति आयोग भी देता है और दीपम भी देता है. राइट. So this is more than enough for the day. And again, thank you so much. Any queries, any doubts, please keep on commenting. And without comments, I think I am superhuman. You are understanding everything, right? So please at least say you understand. So thank you so much. See you next time. God bless you.